Hello students, good morning to all of you. Welcome back. In the last video, we discussed about kinetic energy. In this video, we discuss about potential energies. Now, what is a potential energy? Now, we have always a misconception. Like in junior classes, we studied potential energy is basically mgh. Is the energy possessed by the body by virtue of its position from the surface of the earth. अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर हो उस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी. बट दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली रॉन्ग. नॉट रॉन्ग, half correct. Potential energy is not only due to position from the surface of the earth, it also due to configurations of the body, shape and size of the body. What I mean to say is that, for example, we have a rubber. उस रबर को खींच दिया तो इसमें क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया. Then also, in this case also, the rubber will have some potential energy. So potential energy occurs due to two types. One, with respect to position from the surface of the earth, or with respect to its configuration, shape and size. So that I have written here. Energy possessed by a body on virtue of its position from earth's surface and configuration, that is shape and size, is called potential energy. Okay. So depending on these two types, one is position, another is configuration. We have types of potential energies: gravitational potential energy, which you already know from the surface of the earth. Next is elastic potential energy. Okay, which is a new topic for you. So we have to study two types of potential energies: gravitational and elastic. So पहले आ जाते हैं gravitational potential energy में. This we know, the energy possessed by a body on virtue of its position from the earth's surface. Now how to derive the expression? Expression of gravitational potential, GPE मत लिखना, पूरा full form लिखना. Gravitational potential energy. तो energy है, मतलब work done करना पड़ेगा. So work done to lift a body from the surface of the earth to any height is called gravitational potential energy. So the work done to lift a body against gravity from Earth's surface to any height is stored as gravitational potential energy of the body at that height. For example, this is the ground. Okay, body यहाँ पे है, इसको मुझे उठा के at certain height लेके जाना है, यहाँ पे लेके आना है. That height is h. ठीक है, तो ये जो work done होगा from here to here, that is equals to from here to here. Work done to lift a body against gravity. Against gravity. क्यों? बॉडी जब यहाँ पे रखा होगा तो नीचे की तरफ एक्ट होगा ना, वेट mg, उसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना है. That's written against gravity from surface of the earth to any height is stored as gravitational potential of the body at that height. तो जब वर्क डन फ्रॉम यहाँ टू यहाँ करेंगे तो that work done will be stored as potential energy of the body at this point at a height h. वो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल बॉडी हो जाएगा. कहां का? एट अ हाइट h. यहां पे पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर हो जाएगा. ओके, दैट मींस वी नीड टू फाइंड वर्क डन फ्रॉम ए टू ए. तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? Fs cos theta. So you need to find force, but to apply Fs cos theta you need to check whether the force is constant or not. अगर पूरा फोर्स कांस्टेंट होगा then we can directly find the work done from a to a. अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ then we need to find small work done and integrate. Right, this is the story. So let's consider a body of mass m resting on the ground. mg is the weight. So कोई भी इंसान ले लो, मान लो यहाँ पे है, तो mg is the weight acting on the body. बट मुझे इसके अगेंस्ट लेके जाना है, मुझे ऊपर में एक फोर्स लगाना पड़ेगा F. ओके, तो ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिंग फोर्स, ये हो गया अप्लाइड फोर्स. तो मिनिमम अप्लाइड फोर्स कितना लगाना पड़ता है? फ्रिक्शनल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, इक्वल्स टू ऑब्स्ट्रक्टिंग फोर्स. सो F इक्वल्स टू mg इज द अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन टू मूव द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h. ठीक है, तो mg कौन सा फोर्स है? जो उसको रोक रहा है ऊपर ले जाने के लिए. तो मुझे उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, मिनिमम उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके, तो अप्लाइड फोर्स कितना लगाया? mg. नाउ दिस फोर्स इज वेरिएबल और कांस्टेंट. अगर वो कांस्टेंट होगा तो वी कैन फाइंड द वर्क डन डायरेक्टली. अगर वो वेरिएबल होगा तो मुझे स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा. तो ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास इंटू जी पे. मास इज कांस्टेंट. बॉडी जब यहां से यहां जाएगा तो मास का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना, जी. बॉडी जब यहां से यहां जाएगा क्या जी का वैल्यू चेंज होगा? हमने पढ़ा हुआ है जी इज ऑलवेज कांस्टेंट 9.8. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. ओके, इन क्लास 11 यू विल स्टडी वन चैप्टर कॉल्ड एज ग्रेविटेशन, जहां पे तुम पढ़ोगे दैट द स्मॉल जी वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, इज चेंजिंग विद हाइट, इज चेंजिंग विद डेप्थ. मतलब अगर मैं ऊपर चलता जाऊं तो जी का वैल्यू चेंज होता है, अगर मैं जमीन के अंदर घुसता जाऊं जी का वैल्यू चेंज होता है. दैट मीन्स इन दिस mg, g is a variable, g is not constant. Clear? But ये जो g का वैल्यू चेंज होते हुए तुम्हें दिखेगा
वो तब दिखेगा ना जब तुम बहुत ऊपर चले जाओगे, ठीक है। स्मॉल हाइट मतलब इतना ना नहीं, ओके। 10 स्टोरी 12 बिल्डिंग में चले जाओ तब भी तुम्हें जी का चेंजेस नहीं दिखेगा, तुम्हें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 100 kilometers approx you have to go, then you can see that G is changing. So एक्चुअल में G चेंज होता है, बट मेरी यहां के लिए मैं G को चेंज नहीं मान रहा, बिकॉज G is change, appreciable change only happens when we go almost 100 kilometer upward. तो जब हम किसी बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे उसको 100 किलोमीटर थोड़ा लेके जाएंगे यार, हार्डली 7 8 9 फीट 10 फीट 12 फीट लेके जाएंगे. सो इन दोज केसेस G is a constant. So you understand? So now my force which we apply in upward direction is a constant. That is, we can directly find work done from A to N. So what is work done? Work done body by forces. Fs cos 0 degree. Why 0 degree? Force is also in upward direction. Displacement is also in upward direction. Okay. So what is force? mg. Force कितना लगा रहा है mg? And is a constant. तो मैं apply force लगा सकता हूँ. And how much is the displacement covered? h. तो इस पूरे h के लिए g का वैल्यू कौन सा मैं मान सकता हूँ? इसलिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया. तो वर्क डन कितना है? mgh. This work done is stored as gravitational potential energy of the body at height h. So what is gravitational potential energy? mgh. You understand the derivation class? This derivation never comes in exam. This I am doing just to make you explain, to make you understand the clear concept. इस यहाँ पे मैंने mg को कांस्टेंट माना है. Now few brainstorming you need to study. पहला, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये एनर्जी कब आता है? वर्क डन से. वर्क डन कब होता है? फोर्स से. ठीक है. फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. ये तो मैंने पढ़ा हुआ है. बड़ा कंजर्वेटिव फोर्सेस. तुम काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक जाओ, वहां पे नोटबुक में लिख लो, एक टॉपिक लिखाना भूल गया, एक पॉइंट, कि काइनेटिक एनर्जी दोनों टाइप के फोर्स के कारण होता है. कंजर्वेटिव फोर्स के कारण भी काइनेटिक एनर्जी आता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण भी काइनेटिक एनर्जी होता है. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण ही होता है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता है. मतलब मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लूं, फ्रिक्शन. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रिक्शन. मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये स्मूथ है, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो बॉडी जब यहां से यहां गया तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी आया? तो कितना हाइट कवर किया? h. तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यहां से आया, कितना हाइट कवर किया? h. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh. तब इस बॉडी में एक ही फोर्स लग रहा था, अप्लाइड फोर्स F. लेकिन अगर ये इंक्लाइन प्लेन रफ हो जाए, रफ, तो यहां भी तो एक फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स. तब तो वहां पे दो पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए, एक पोटेंशियल एनर्जी बाय अप्लाइड फोर्स, एक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन प्रैक्टिकली दिखा गया है कि जब ये फ्रिक्शन होगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी mgh ही आता है. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता. सो इफ इन योर सिस्टम there exists some non-conservative force, it doesn't affect your potential energy expression. You understand nicely? ये सब चीज अपने लाइन पे लिखोगे थोड़ा सा. सो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आता है. कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल था ग्रेविटेशन फोर्स, मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियोस में. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है. फिर और फ्रिक्शनल फोर्स, ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है. Am I clear? I hope you understand what I'm trying to say you by this line. No potential energy exists. No potential energy exists for non-conservative forces. ये एग्जाम्पल हो गया इंक्लाइंड प्लेन का. ओके, चाहे फ्रिक्शन हो या नहीं हो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज mgh. ओके, नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब जैसे मैंने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड करता है. कैसे? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. वेलोसिटी अलग अलग होता है, कहां से मैं देख रहा हूं बॉडी का वेलोसिटी वो मैटर करता है. तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मास तो चेंज नहीं होगा, g चेंज नहीं होगा, h सोचो तो h चेंज होगा. जैसे मैं यहां पे पेन को रख दिया, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये पेन का हाइट कुछ है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू सी लेवल पेन का हाइट अलग हो गया ना. सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैं हाइट कहां से मेजर कर रहा हूं,
it with respect to the floor of this room, height is again changed. So that's why it depends on frame of reference. Next, it can be positive or negative. अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन होगा. मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया था? काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन इज स्केलर प्रोडक्ट. ओके, डॉट स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है. तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो वर्क डन है, वो भी तो स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, राइट? यस और नो? तो यहां पे लिख सकते हो इट इज स्केलर क्वांटिटी, वो तो सही है. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन है, अगर वो भी स्केलर है, तो वो नेगेटिव कैसे होगा? तो वो नेगेटिव इस तरीके से होता है. तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क क्या है? कभी बॉडी ऊपर जा रहा है, कभी बॉडी नीचे आएगा. जो बॉडी ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, पॉजिटिव. जो बॉडी नीचे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव. विथ रिस्पेक्ट टू दैट दे से कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. एच अगर हाइट अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, अगर हाइट अगर घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा. यू अंडरस्टैंड व्हाई पॉजिटिव नेगेटिव क्लास. लेकिन काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी का स्क्वायर है. तो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकता है. क्यों हो सकता है? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसका होल स्क्वायर हो गया ना बेटा. सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है बिकॉज हाइट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैं किस पॉइंट से हाइट मेजर कर रहा हूं, ऊपर से मेजर कर रहा हूं कि नीचे से मेजर कर रहा हूं. एच कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट, ये जो पूरा डेरिवेशन किया ना बेटा, ये पूरा कॉन्सेप्ट गलत है. पढ़ाया कि फिर गलत ही है. जब मैंने क्या बोला, वर्क डन टू लिफ्ट अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एनी हाइट, मतलब वर्क डन फ्रॉम हियर टू हियर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, राइट? नो, work done from one point to another point is equals to change in its potential energy. Potential energy at B minus potential energy at A. This is the story. For example, ये ग्राउंड है, ठीक है? यहां पे पॉइंट A है और यहां पे पॉइंट B है. यहां का हाइट HA है और यहां का हाइट HB है. तो अगर मैं बोलूं वर्क डन फ्रॉम A to B, that is not equals to potential energy, that is equals to change in potential. Potential energy at B minus potential energy at H, MB, HB, MG, HA. So that is the actual concept of work done, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था. वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा था हमने. तो जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं, जो हमने वर्क डन निकाला, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. ये पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट H माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड है. ग्राउंड का तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है ना, तो MGH minus 0 is MGH. So for the simplicity of the derivation I have written this way, but in numericals you have to consider this condition. Clear? अब देखो, इसी में कुछ साइन कन्वेंशन चेक करते हैं, ठीक है ना? साइन कन्वेंशन. Again this phone and all. Wait for some time, class. Okay. यहां पे देखो, कुछ साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे. वो साइन कन्वेंशन क्या होगा? सी. If I say work done by body, वो पॉजिटिव होता है. ये तो मैंने पढ़ा है. तो इस केस में बॉडी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ओके, इस केस में बॉडी राइज कर रहा है, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. राइज करेगा तो ऊपर उठेगा. ओके, तो मतलब फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल ऊपर उठेगा तो ऊपर में फाइनल बड़ा होगा. कि हाइट बड़ा है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बड़ा होगा. दैट्स अ बॉडी राइजेस. एक ये. दूसरा, वर्क डन ऑन द बॉडी. इस केस में पोटेंशियल वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है. इसका मतलब क्या? बॉडी गोइंग डाउन, नीचे आ रहा है, मतलब फाइनल छोटा होगा इनिशियल से. ओके, तो ये साइन कन्वेंशन कभी कभार पूछ देते हैं बेटा, और कुछ नहीं है. ओके, so that's all for the potential energy topic. Did I miss anything else? No. Okay, now we'll go to the elastic potential energy. We understand a lot about gravitational potential energy. Now we'll go to the elastic potential energy, which is totally a new concept for you all. Let's go for the next topic. Okay class, the next topic is elastic potential energy of a spring. Now elastic potential energy is not only of a spring, it can be of anything, rubber, any body which is
रिकन्फिगर, जिसका शेप चेंज कर दिया गया हो, जिसको टान दिया हो, जिसका शेप थोड़ा मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बट हम सिर्फ स्पेसिफिकली स्प्रिंग के लेके पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग का होता है, नहीं, कोई बॉडी का होता है जिसको हम रीशेप कर सकते हैं, ओके, जिसको हम बेंड कर सकते हैं, जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, उन सब का इलास्टिक पोटेंशियल ही होता है। क्लियर? तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ स्प्रिंग के साथ काम करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट स्प्रिंग। सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? ओके, रीस्टोरिंग फोर्स किसको बोलते हैं? डिनोटेड बाय Fr। नाउ तुम प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाओ, एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच करो और छोड़ दो, व्हाट विल हैपन? द स्प्रिंग विल रिटर्न बैक, राइट? So it's trying to restore its original configuration, original shape में आने का कोशिश करता है। तो ये जो coming back, that is due to the force called as restoring force. The name suggests restoring, it's returning back, restore हो रहा है। So why it's coming? Why there is a force exists? Because it's trying to return back. So that I've shown here. For example, this is a spring which has some length L, and there is no force acting on the spring. This is the common length. अब मैंने क्या किया? थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच किया मैंने, एक्स लेंथ स्ट्रेच किया। तो अब जैसे मैं एक्स लेंथ स्ट्रेच करूंगा, वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स, और जैसे मैं रिलीज करूंगा तो वो पीछे आएगा ना, दैट मींस देयर इज सम फोर्स एक्टिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, Fr, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, अब प्रैक्टिकली जाओ, थोड़ा स्प्रिंग को खींचो और छोड़ो, फिर लंबा खींच के छोड़ो। कब ज्यादा तेज आएगा? जब मैं जितना लंबा खींचूंगा उतना ज्यादा तेज से आता है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रेच किया। अगर मैं ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो ज्यादा तेज से आएगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ओके, अब माइनस क्यू, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है और मैं स्ट्रेच उस डायरेक्शन में कर रहा हूं, दैट्स व्हाई माइनस। क्लियर? अंडरस्टैंड? बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। इसको हम समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रेच करूंगा उतना तेज से आता है पीछे की तरफ, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब व्हेन आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, वी हैव अ कांस्टेंट k। व्हाट इज दिस k? k is called as force constant or spring constant, that totally depending on spring। स्प्रिंग किस मटेरियल से बना है, लेंथ क्या है स्प्रिंग का, रेडियस क्या है स्प्रिंग का, सो डिपेंड्स ऑन दीज थ्री थिंग्स, सो दैट इज k। ओके, k इज द स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग किस मटेरियल से बना है, क्या वो ज्यादा स्टिफ मटेरियल से बना है जो ज्यादा टफ है, जिसको स्ट्रेच करना इजी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक अ पेन स्प्रिंग, पेन के अंदर जो स्प्रिंग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही स्टिफ होते हैं, उसको टान नहीं सकते ज्यादा इजीली। लेकिन अगर नॉर्मल स्प्रिंग टू विच वी यूज इन फिजिक्स लैब, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो तो बड़ा आराम से झुल जाता है ना। सो डिपेंड्स ऑन, जिसका लेंथ छोटा होगा उसका स्टिफनेस ज्यादा होगा, वी कैन नॉट स्ट्रेच इट इजिली, दैट मींस k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लेंथ छोटा होगा उतना k का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब स्टिफ ज्यादा होगा। स्टिफ ज्यादा होगा मतलब क्या, मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। ओके, ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्टली उसका रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा है। यू अंडरस्टैंड दिस? k is inversely proportional to L. Okay, the graph is inversely proportional like this. Next, if someone asks me draw a graph of restoring force versus stretch length, so we know it is proportional. Minus sign only this direction shows, so don't worry about this minus sign. यहाँ पे लिख सकते हो minus sign shows that Fr and X are in opposite direction. So I hope you understand this graph. I hope you understand this graph, and you hope what is K? K is spring constant. वो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग के किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? रेडियस पे, लेंथ पे और मटेरियल पे, किस मटेरियल से बना हुआ है। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? जितना पतला छोटा लेंथ स्प्रिंग होगा उतना स्टिफ ज्यादा होगा, दैट मींस उतना k का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर L कम है तो k ज्यादा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स वी रीड हियर। Expression for elastic potential for spring. Now we'll learn how to derive the elastic potential for spring. ठीक है ना? तो we know what is elastic potential energy. The potential energy possessed by the spring on virtue of its configuration. मतलब उसके लेंथ को बढ़ा दिया, स्ट्रेच कर दिया और कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने से तो उसका शेप चेंज कर रहा हूं मैं, तो दोनों केस में उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आता है। That I've written here. The potential of a spring is the energy associated with the state of compression or expansion of a spring. Energy जो स्प्रिंग के अंदर होगा ड्यू टू
विद द स्टेट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपैंड करूंगा तब आएगा, कंप्रेस करूंगा तब आएगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज जस्ट डेफिनेशन, बट हाउ टू डिराइव इट। तो मुझे एनर्जी डिराइव करना है तो वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो एक्सपैंड कर रहा हूं और वो कंप्रेस कर रहा हूं, जैसे मैं एक्सपैंड करूंगा मैं रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा, क्योंकि जैसे मैं एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगा देयर विल बी वन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज, तो मैंने फ्रिक्शन जब मैं बढ़ा था, वर्क डन जब करना होता है तो कोई फोर्स रोकता है और मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है। तो जब मैं इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगा इस स्ट्रेच, इस स्प्रिंग को, तो ये फोर्स रोकेगा मुझे, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्टिंग फोर्स। तो मुझे कुछ अप्लाई फोर्स लगाना पड़ेगा, किसके बराबर, ऑब्स्ट्रक्टिंग फोर्स के बराबर। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो मैंने यहां पे लिखा है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स टू एक्सपैंड द स्प्रिंग बाय सर्टेन लेंथ। ओके, सो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर। अब एक जनरल व्यू समझो, वर्क डन निकालना है, वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज तुम नोट्स में अच्छे से बाहर लिख के रखना रफ में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्प्रिंग है, मैंने इस तरह फोर्स लगाया, इसको स्ट्रेच करके एक्स ले लिया, एक्स लेंथ, कैपिटल एक्स लेंथ खींचा, तो फोर्स क्या होगा, एफ इंटू एक्स कॉस 0 डिग्री फोर्स जो लगा रहा हूं, मतलब अप्लाइड फोर्स एफ ए लगा रहा हूं, ठीक है। एफ ए इंटू कैपिटल एक्स, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया एफ एस कॉस थीटा। बट जब तुम एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला लगाते हो तुम्हें चेक करना पड़ता है ना, इस पूरे एक्स के लिए फोर्स का वैल्यू कौन सा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो चेक करते हैं, तो एफ ए क्या है, एफ ए किसके बराबर होगा, एफ ए एफ आर के बराबर होगा, लेकिन माइनस होगा क्योंकि एफ आर इस तरफ है तो एफ ए इस तरफ लगेगा, और दैट इज माइनस के एक्स, दैट मीन्स एफ ए के एक्स है, तो एफ ए क्या आ रहा है, के एक्स इंटू कैपिटल एक्स कॉस 0 डिग्री, दैट इज 1। अब देखो तो ध्यान से, फोर्स जो है वो k इंटू एक्स है, मतलब फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज x, द स्ट्रेच लेंथ। अब मैं जब ये फॉर्मूला लगाता हूं, इस पूरे s के लिए फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, राइट। अब मैं जो फोर्स यहां पे लगा रहा हूं वो डिपेंड कर रहा है x पे। जब मैं यहां से स्ट्रेच करना स्टार्ट करूंगा x कंटिन्यूसली बढ़ेगा ना, दैट मींस x इज चेंजिंग, दैट मींस अप्लाइड फोर्स इज चेंजिंग। At every instant, the applied force is changing. So since the applied force is changing, that means the force is variable. Can we use this formula? No. तो ये तुम कॉपी में वीडियो को पॉज करो और लिखो कि force is variable here. That's means we cannot apply the formula directly. So what I have to do? मुझे कोई भी इंस्टेंट देना पड़ेगा। तो यहां से यहां मैंने स्ट्रेच किया, उसके बीच में मैंने कोई भी इंस्टेंट लिया, and then we will do the small work done, and then we will integrate. Okay. First pause the video and please write down in your own language those things. Okay, class. So I think you understand now. You have written on your own language. You understood that what I am discussing here. I am discussing here is why I am doing this way. Why I am making third figure. Why only these two figures will not work. मुझे वर्क डन निकालना है, अच्छा बात है, चलो वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो ठीक है, मैंने स्प्रिंग को यहां से यहां तक स्ट्रेच कर दिया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स, फोर्स कितना लगाया, अप्लाइड फोर्स एफ ए। तो अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए इस पूरे एस के लिए फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये पूरे एक्स लेंथ के लिए यहां से यहां तक के लिए इस फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखते हैं ये फोर्स है क्या, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा, राइट। और रीस्टोरिंग फोर्स खुद डिपेंड करता है माइनस के एक्स, मतलब अप्लाइड फोर्स भी के एक्स आ रहा है, मतलब अप्लाइड फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं स्ट्रेच यहां से यहां करूंगा, हर एक पॉइंट में जब इसको मैं स्ट्रेच करना से स्टार्ट करूंगा तो हर एक पॉइंट में एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, ये एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब अप्लाइड फोर्स एट एवरी इंस्टेंट इज चेंजिंग, दैट मींस अप्लाइड फोर्स इज वेरिएबल, दैट मींस वी कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ओके, कंसीडर स्प्रिंग ऑफ लेंथ L, स्प्रिंग का लेंथ L है एंड फोर्स कांस्टेंट K, लेट द स्प्रिंग स्ट्रेच बाय x लेंथ से स्ट्रेच कर दिया। अब सिंस वी कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड द वर्क डन, सो हमें कोई भी इंस्टेंट लेना पड़ेगा। तो लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ स्ट्रेचिंग, यहां से यहां स्ट्रेच करने के बीच में कोई भी इंस्टेंट लेता हूं, x इज द स्ट्रेच लेंथ, उस इंस्टेंट में x स्ट्रेच लेंथ है। सो एट दैट इंस्टेंट द रीस्टोरिंग फोर्स इज Fr माइनस kx,
Therefore, what is the applied force to stretch the spring? तो Fr तो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो applied force to stretch the spring further against restoring force कितना होगा? माइनस Fr. ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर Fr लग रहा है विच इज माइनस kx, तो इसके अगेंस्ट मुझे अगर फर्दर इसको स्ट्रेच करना है उस तरफ, तो कितना अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा? माइनस Fr के बराबर, इक्वल और ऑपोजिट, सो माइनस Fr, तो माइनस माइनस प्लस kx आ गया. Now this applied force did some small work done to displace dx. Small displacement क्यों लिया? तो क्योंकि small displacement के लिए मैं F को कांस्टेंट मान सकता हूं ताकि मैं अप्लाई फॉर्मूला कर सकूं, Fs cos थीटा लगा सकूं, क्योंकि Fs cos थीटा लगाने के लिए इस पूरे S के लिए F का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, उसके लिए तो मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं. तो determine the small work done by Fa to stretch the spring by dx distance. What is dw? Fa dx cos 0 degree. Fa भी इधर, dx भी इधर, देखो फिगर. Okay, that is kx dx. मिल गया small work done. Now total work done to stretch the spring by x length is equal to integration of kx dx. अब इससे वेरिएबल क्या है? dx लिखा है, x वेरिएबल है, that means this is वेरिएबल. तो जब ये स्प्रिंग यहां था तो x का वैल्यू 0 था, ये x है. जब स्प्रिंग यहां था, यहां से यहां ले गया ना स्प्रिंग को मैंने, जब यहां था तो x का वैल्यू 0 था, और जब यहां था तो x का वैल्यू कैपिटल X हो गया. सो 0 टू कैपिटल X, तो k बार x dx, x टू पावर 1 x स्क्वायर बाय 2, 0 टू x. ओके, k बाय 2 बार वेरिएबल के जगह अपर लिमिट डालो, कैपिटल X स्क्वायर माइनस स्मॉल 0 स्क्वायर, तो हाफ k x स्क्वायर, k capital X square. So this is the work done. So this work done is stored as elastic potential to the spring. What is the formula? Half k capital X square. जहां पे ये कैपिटल X क्या है, कितना स्ट्रेच हुआ? ओके, जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. Do you understand? I hope you understand the need of integration. Why we have to go for integration? ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है क्लास. हाँ, okay class, now we will discuss in that spring concept. We understand the potential of the spring is half kx square. That doesn't mean that spring has only potentiality. When I release the spring here, when it moves, it has some velocity now, since it is moving. So what will happen to the spring? It will oscillate. When I stretch by a distance a, x equals to plus a, I'm just plotting those points in terms of coordinates. ये x 0 mean position without any stretch नॉर्मल फ्री पोजीशन में है, दैट इज मीन पोजीशन. और ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है. यहां तक खींचा फिर छोड़ दिया, तो स्प्रिंग ऐसे करके मूव करके यहां जाएगा, फिर ऐसे करके यहां जाएगा, धीरे 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 वापस मीन पोजीशन में आ जाएगा, राइट? सो ड्यूरिंग इट्स मोशन द बॉडी द स्प्रिंग विल हैव सम वेलोसिटी आल्सो, राइट? दैट मींस इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो. सो आई नीड टू प्लॉट ओके द एनर्जी वर्सेस पोजीशन, दैट इज डिस्टेंस. कहां पे कितना एनर्जी है वो मुझे पता करना है. यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है. दैट इज माय जॉब, इज टू प्लॉट. ओके, सो वी नीड टू शो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी P, काइनेटिक एनर्जी K एंड टोटल एनर्जी E ऑफ द स्प्रिंग विद डिस्टेंस. विच डिस्टेंस? स्ट्रेच लेंथ. जितना स्ट्रेच लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में. तो मुझे पता है एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या? x इक्वल्स टू प्लस माइनस a. यहां पे और यहां पे काइनेटिक पोटेंशियल कितना होगा? हाफ k a स्क्वायर. ओके, एंड दैट इज ओनली इक्वल्स टू टोटल एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि इन दोनों पोजीशन में वो स्प्रिंग रुक जाता है और वापस से चलने लग जाता है. Here and here the velocity is 0. That means the spring will have only potential energy half k square, and that is only equals to maximum total energy, and that is only maximum potential energy also. At this point kinetic energy is 0. Now at mean position, that is x equals to 0. Now what is happening? 0. जैसे मैंने यहां पे स्ट्रेच करा, उसका मैक्सिमम स्ट्रेच लेंथ आ गया, मतलब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. इसको जब छोड़ा तो धीरे धीरे जो स्ट्रेच लेंथ है, ये जो स्ट्रेच लेंथ है, ये जो x वैल्यू धीरे धीरे घटेगा. दैट मींस उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा. तो जो पोटेंशियल एनर्जी घट गया वो क्या होगा? दैट पोटेंशियल एनर्जी स्लोली कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो एट एक्सट्रीम पोजीशन maximum potential energy, no kinetic energy. So when this moves to mean position, its potential is decreasing.
Okay, and kinetic energy is increasing. So at its mean position, all the potential energy is converted into kinetic energy, and that is equals to total energy. And here the potential energy becomes zero, क्योंकि x जीरो हो गया, स्ट्रेच लेंथ जीरो हो गया. तो जब ये बॉडी यहां से यहां जाएगा ऐसे करके, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. पोटेंशियल एनर्जी घटते 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 एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया. मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया. And that is only total energy. Clear? And at any position, any x value, total energy क्या होगा? Kinetic plus potential होगा. ये always constant होगा. ये change नहीं होगा. Total energy is always a constant. So, now how much is that total energy? Half k square. So let that total energy half k square. Half k a square. ओके, तो अगर मैं बोलूं टोटल एनर्जी का वेरिएशन बताओ, तो टोटल एनर्जी तो एक्स के साथ चेंज नहीं होता है. तो टोटल एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले ले, ये इधर, यहाँ पे ले ले, ये इधर, यहाँ पे ले लो. तो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया. क्लियर? सो ये हो गया टोटल एनर्जी का ग्राफ E, विच इज नॉट चेंजिंग विद एक्स. इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लस नाउ वी विल प्लॉट पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ. ओके, इन द सेम हियर वी विल प्लॉट द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आल्सो. नाउ कैसे प्लॉट करेंगे? एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, दैट मींस ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया. एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, एट दिस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बट एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ होगा ऐसा. ओके, नाउ कर्व क्यों होगा? ऐसा क्यों नहीं होगा ग्राफ? ऐसा क्यों होगा? कर्व क्यों होगा? क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है ना, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा. क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास. तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ. नाउ काइनेटिक एनर्जी ग्राफ प्लॉट करते हैं. एट एक्सट्रीम पोजीशंस काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है. द स्प्रिंग इज नॉट मूविंग. तो यहां पे 2 पॉइंट्स आ गए. एंड एट मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू half k square. So this is the graph of kinetic energy K. So this is the graph of potential energy P. This is the graph of kinetic energy. Okay, again curve क्यों है? क्योंकि वो a square है, पैराबोला ग्राफ बनेगा. Okay, नहीं तो स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे करके ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है. So you understand the variations of graph plus? Okay, so you have to understand this graph with respect to the position like this. Okay, so what we understand now that at the extreme positions potential is maximum half k square. Okay, and that is equals to total energy. At mean position potential is zero, mean kinetic energy is maximum, and at extreme position kinetic energy is zero. यहाँ पे velocity नहीं होता है. Okay, now we left with the last topic of energy topic, which you studied in class 9. Okay, prove that the total mechanical energy is conserved in a free fall of a body. ये आपने पहले भी एग्जाम में छोटे क्लासेस में पढ़े हैं. इन अ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, दैट मींस अ बॉडी व्हिच इज गोइंग डाउन फ्रॉम रेस्ट, फॉलिंग डाउन. तो इट इज फॉल डाउन बिकॉज अंडर ग्रेविटी. वो ग्रेविटी के अंदर फॉल होगा ना क्लास. कोई बॉडी अगर नीचे गिर रहा है तो क्यों नीचे गिरेगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो ड्यू टू फ्री फॉल ऑफ बॉडी एट एवरी पॉइंट द टोटल एनर्जी इज कंजर्व. ओके, दिस टॉपिक यू हैव टू स्टडी फ्रॉम अ बुक. दो आई विल एक्सप्लेन हियर व्हाट इज गोइंग ऑन, but you have to study this topic from a book. Okay, मैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, मैं बस रफली सॉल्व करके दिखाऊंगा. So what we gonna do? You have to prove principle of conservation of energy. You prove principle of conservation of energy in a free fall. Okay, so let I am taking a body which initial velocity is zero, free fall हो रहा है ना, and let it is falling through a height h. Okay. So I have to show that at every point the total energy is conserved. The total energy is always constant. That is my job to prove. Clear? Okay. तो वो मुझे prove करना है कि everywhere the total energy is conserved. Which energy? Mechanical energy. Kinetic plus potential. ठीक है? So I am taking this as 3 points A, B. और कोई भी एक point randomly ले लो P. और इस किसी भी distance को x मान लो. Okay? मान लो ये distance x है. तुम इस distance को भी x मानोगे तब भी तुम्हारा आंसर आएगा. ओके, तो चलो बात करते हैं एट ए. एट ए में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m0 स्क्वायर. एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh.
तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए, दैट इज mgh. तो टोटल एनर्जी एट ए इज mgh. हो गया. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एट बी. बी पे कितना होगा? तो टोटल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना होगा? हाफ एम वीबी स्क्वायर. यहां पे कितने वेलोसिटी से बॉडी ने गिरा? यहां का तो वेलोसिटी जीरो था क्योंकि फ्री फॉल था, तो रेस्ट से था. यहां पे तो कुछ वेलोसिटी होगा ना, राइट? एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा? अगेन mg जीरो हो जाएगा. बी ग्राउंड में, h जीरो हो गया हाइट. यू अंडरस्टैंड दिस? तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वीबी स्क्वायर है. अब मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तो मुझे वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ h. तो वो मैं निकालता हूं. चलो, मोशन फ्रॉम ए टू बी लेते हैं. मोशन फ्रॉम ए टू बी लेते हैं. ए टू बी, क्योंकि मुझे ए का इनिशियल वेलोसिटी पता है. ठीक है, आई कैन यूज वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को 2as, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2as. तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? वी बी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 2, नीचे जा रहा है बॉडी, प्लस जी, हाइट कितना है h, तो वी बी स्क्वायर कितना है 2gh. देखो काइनेटिक एनर्जी बी कितना हो गया? हाफ m 2gh, दैट इज हाउ मच? mgh. Therefore, what is total energy at B? Kinetic energy at B plus potential energy at B. Kinetic energy at B is this. Potential energy is 0. That means total energy at B is also mgh. देखो, total energy at A is mgh. Total energy at B is also mgh. The only thing you have to worry about is that ये वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो मैं यहां से यहां मोशन लेकर कैलकुलेट कर लिया. ओके, लेट्स टॉक अबाउट एट P. ओके, काइनेटिक एनर्जी एट P कितना होगा? हाफ m वेलोसिटी एट p होल स्क्वायर. यहां पे तो बॉडी का कुछ वेलोसिटी होगा ना, vp. ओके, एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट p? mg. ये डिस्टेंस कितना होगा? h माइनस x. टोटल h ये x है. ओके, अगेन vp मुझे निकालना पड़ेगा, तो मोशन के साथ काम करते हैं. मोशन फ्रॉम a टू p लेते हैं. चलो, अगेन a टू p क्यों लिया? क्योंकि a का इनिशियल वेलोसिटी पता है. तो अगेन v स्क्वायर, that is vp square, u square 0 square 2g x, h is x है, 2g 2as होता है ना, 2as, a is plus g, x, s is h, x. इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो यहां से vp square 2gx डाल दो. and what is kp? half m 2gx, that is mgx. हो गया. therefore what is total energy at p? kinetic energy at p plus potential energy at p. तो kinetic energy at p कितना है? mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी कितना है? mgh माइनस mgh. देखो कट गया. सो व्हाट आई गॉट? टोटल एनर्जी एट पी इज आल्सो mgh. सो फ्रॉम 1 2 and 3 व्हाट वी अंडरस्टैंड, द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व. टोटल एनर्जी हर जगह सेम होगा. दैट्स शोस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. ओके, नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक हियर? बिकॉज यहां भी तुम्हें वेरिएशन दिखाना है. वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विथ हाइट. ठीक है, हाइट के साथ वेरिएशन दिखाना पड़ेगा. तो ये हम कैसे दिखाएंगे? ओके, ये डिस्टेंस के साथ मुझे वेरिएशन दिखाना है. तो इस वेरिएशन को दिखाने टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता है. जैसे हमने जो स्प्रिंग का जो वेरिएशन दिखाया वो ग्राफ कर्व था, पैराबोला था, क्योंकि वहां पे ए स्क्वायर था, डिस्टेंस का स्क्वायर था. लेकिन यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, h है, सिंपली डिस्टेंस है. तो इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा क्लास. ओके, तो ये ग्राफ कैसा होगा? सी. तो मान लो ये हो गया एनर्जी वर्सेस हाइट. तो पहले टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा. टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कांस्टेंट है. कितना है? mgh. ओके, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व. mgh is the total energy. I hope you understand. At any h value, total energy is mgh only. It is not changing with height. Clear? Understood class? Total energy is always conserved. अब हम क्या बात करते हैं? काइनेटिक एंड पोटेंशियल का. तो एट हाइट h, यहां पे देखो हाइट 0 है, हाइट 0. अब मैंने जो हाइट मेजर किया वो यहां से यहां किया कि यहां से यहां किया, वो मैटर कर जाता है. डिपेंड ऑन दैट वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ क्लास. ओके, तो जो मैंने हाइट मेजर किया वो कहां से मेजर किया है?
क्या मैंने नीचे से क्या है, क्या मैंने ऊपर से क्या, बिकॉज डिपेंड ऑन दैट बुक्स में अलग है, हमारा अलग बनने वाला है। ओके, अगर मैं बोलूं एट हाइट h इक्वल्स टू 0, मतलब कहां पे है हम, ग्राउंड में है ना, तो h इक्वल्स टू 0, दिस इज द पॉइंट, h एक्सिस 0 होगा, सो एट h इक्वल्स टू 0 हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी, हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी, सोचो काइनेटिक एनर्जी कितना है, मैक्सिमम mgh, देखो h equals to 0 means point B. What is point B? What is kinetic energy? mgh. Okay, that means ये point आ गया. Okay, now at maximum height, what is kinetic energy? 0. तो maximum height ये रहा, यहाँ पे है, तो ग्राफ ये रहा, तो this is the graph of kinetic energy. Clear? Now, similarly, at h equals to 0. Okay, that is ground. What is potential energy? 0. The potential energy 0 है. Clear? And at maximum height, h equals to maximum height, what is potential energy? Maximum mgh, मतलब ये रहा mgh. At h, तो ये हो गया ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का. ओके, अब अगर इफ यू चेक आउट द बुक्स, अगर बुक्स देखोगे, बुक ने ये ग्राफ को पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बोला है, ये ग्राफ को काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बोला है. ऐसा क्यों? क्या मैंने गलत किया? क्या कहीं मैंने गलत किया है? तो मैंने कहीं गलत नहीं किया बेटा, दैट इज आल्सो करेक्ट. एंड द बुक ने जो किया है दैट इज आल्सो करेक्ट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है सुनो. तो ये हुआ विथ हाइट के साथ मैंने दिखाया, एच का वैल्यू लेके बात किया, एच का. ओके, इसके बारे में बात किया मैंने एच का. अगर मैं अभी यही ग्राफ फिर से बनाऊं, वेरिएशन ऑफ P, K and E with position. अब देखो ध्यान से, मैं अगर एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, तो क्या होगा? ओके, तो अब पोजीशन मतलब क्या, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन? तो तब बॉडी स्टार्ट कहां से किया क्लास? यहां से किया ना बॉडी ने, तो यहां से पोजीशन x होगा. कैलकुलेशन, लेट दैट पोजीशन इज x. ओके, तो अब प्लीज पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन दीज थिंग्स. ओके, क्योंकि अगेन आई विल से यू व्हाई द बुक ग्राफ इज लाइक दैट. सो कोई भी पोजीशन हो, टोटल एनर्जी तो यही रहेगा ना पास. अब मान लो ये हो गया x इक्वल्स टू 0 और यहां पे है x इक्वल्स टू h, x का वैल्यू h हो गया. तो मैं कैलकुलेशन x का ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि बॉडी ने स्टार्ट यहां से किया है. सो एट x इक्वल्स टू 0 मतलब कहां? मैक्सिमम हाइट, ऊपर में है, टॉप में है. दैट इज ऑल वी कैन से. एट x इक्वल्स 0 मतलब क्या? एट a, टॉप. तब जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है. एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना है? मैक्सिमम है mgh. एंड एट x इक्वल्स टू h, दैट इज एट b, ग्राउंड, तब जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है. तो वो लोग ने बुक में जो ग्राफ बनाया वो भी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने पोजीशन के हिसाब से बनाया. और पोजीशन में इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करता हूं मेजर करना. तो पोजीशन मेरा इनिशियल पॉइंट यहां पे है, मैं यहां से मेजर करूंगा x का वैल्यू. तो यहां पे x 0 है, और धीरे धीरे x इक्वल्स टू h हो जाएगा जब यहां पे पहुंचेगा. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट विद x इक्वल्स टू 0. तो x 0 मतलब ये वाला पॉइंट, इसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब ये रहा काइनेटिक एनर्जी 0 है. एंड एट x इक्वल्स टू h, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब ये रहा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ. मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि मैंने वहां पे हाइट के रिस्पेक्ट में दिखाया था. ओके, अब एट x इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल कितना है? mgh. मेरा पॉइंट x इक्वल्स टू पोटेंशियल mgh है, ठीक है. इस वैल्यू को लिख दो mgh. एट x इक्वल्स टू h पोटेंशियल 0 है. ये हो गया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, किसका? पोटेंशियल एनर्जी का. नाउ स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? आई टोल्ड यू. स्प्रिंग की केस में कर्व लाइन क्यों हुआ था? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर था. यहां पे डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर नहीं है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट है, mgh है. So I hope you understand both the cases. This is also correct. This is also correct, class. Okay, this is the end of the topic energy. Now we left with last topic of this chapter, that is collision, which will start in the next video, class. Thank you very much.